next lecture of 7, chapter 4, growing up as boys and girls. Students, before that we learn about what is the different treatment the boys and girls got in our society and in their families. We also learn about the gender stereotypes. Okay, today we will learn about the value and place of women's work. So students, say that the work of women is not valued much as compared to that of men. Because what is the reason behind that? Already we discussed on it. The value of women is not valued. The work of women is not valued much as compared to that of men, because generally most societies, including India, consider men to be the bread earners of the family. Bread earner means what? जो अपनी फैमिली को फूड प्रोवाइड करता है या फिर अपना घर चलाता है, दैट इज़ ब्रेड अर्नर्स. And just because women are not paid any salary for doing household works, it is believed that their work is valueless. See that already I gave you one example over there. ठीक है, for example, if your father going into the in his work, for example, if he is a bus conductor, he is a teacher, doctor, or he is working in any office, so his work time is for 8 to 5 p.m. Okay, so he got the salary for that work near about 20,000 per day, and that is the salary of your father. After that, when your father return at home, he is not doing any work, means for example to clean the utensil, to clean the clothes, or cooking food in this way, nothing. He totally take a rest. And in the morning also, when he go into his office for his job, he is not having a lots of work over there. ठीक है, but when we talk about our mother's work, so what is the difference there? Our mother start her working from 5 a.m. in the morning till 11 p.m. in the night. Many types of work she work in the house. For example, cooking food, cleaning clothes and cleaning utensils, cleaning floor, take care of small son or daughter, take care of grandfather, grandmother, in this way. But she is not getting a salary over there, not a single rupee she is getting over there. Why? Because the father is a consider of a bread earner of the family, and just because women are not paid any salary for doing household work. So students, see that is the difference between this earning and the value of male and female in our India. So see that our first point we will discuss here related to that topic, women's unpaid work. Across the world, women bear the burden of household work which is unpaid and not valued. See that पूरी दुनिया में जहाँ पर भी हम देखें, सो वीमेंस बियर द बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क, पूरे घर का काम हमारी मम्मी करती है. यहाँ पर मैंने आपको मॉडल का एग्जांपल दिया था, देखो छिल्लर, मानसी छिल्लर का, कि वो मिस इंडिया बनी कैसी. उनको एक लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा, कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी होनी चाहिए, तो उन्होंने आंसर दिया था कि मम्मी की, मदर की होनी चाहिए, क्योंकि वो जितना काम करती है उतना काम इस दुनिया में कोई नहीं करता है, और फिर भी उसको एक रुपया भी नहीं देते एज अ सैलरी. तो उनके स्टेटमेंट से वो तो विनर हो गई. लेकिन बाकी के जो थे थिंकर्स, उन्होंने इस पर खोज की और उन्होंने एक थ्योरी के बेस पर ये रियलाइज़ किया कि उनका जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से प्रूफ होता है. तो उन्होंने जो भी स्टडी की उससे रिलेटेड, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला क्या, कि हर मम्मी को या हर हाउस वाइफ को हर मंथ में कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, 70,000, जो भी वो काम करती है घर का. सो सी दैट सिंस अ मेजर पार्ट ऑफ द डे इज स्पेंट डूइंग अप
unpaid household work. Women usually have less time and energy to do paid jobs. Women usually have less time and energy to do पेड जॉब्स. जो भी वो काम करती है वो फटाफट क्विकली, आप किसी भी फील्ड में जाइए जहाँ वहाँ पर एक फीमेल्स के जितना भी फीमेल स्टाफ है वहाँ पर आप उनके काम को एक मेल स्टाफ से कंपेयर करें. ठीक है, कैसे कि वो कितनी क्विकली अपना काम करती है और कितनी एनर्जी से करती है. हर एक फील्ड में जाओ आप. So see that working women often face the double burden of household work as well as their jobs. So working women often face double burden. डबल बर्डन कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी सपोज हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनकी मम्मी हाउसवाइफ के साथ साथ वो टीचर भी है या फिर बैंक में जॉब करती है, डॉक्टर है, इन दिस वे. लेकिन फिर भी दोनों क्लास वो कैसे काम वो कैसे करती है. देखो सपोज ये टीचर है और ये हाउसवाइफ है. ओके, सो हाउसवाइफ एज अ वाइफ, हाउसवाइफ वो सुबह 5 बजे उठती है, 5 AM घर का पूरा काम, बर्तन वगैरह धोना, कपड़े धोना, यूटेंसिल्स, क्लोथ, फूड, कुकिंग फूड, क्लीन फ्लोर, और इसके साथ साथ ही वो आपको स्कूल में पहुंचाती है. ठीक है, आपके पापा का टिफ़िन देती है, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी वो देखभाल करती है. ये सब काम करके वो मॉर्निंग में 8 o'clock को स्कूल में भी आती है, पहुंच जाती है स्कूल में. 2 बजे जब वो स्कूल से घर जाती है तब सपोज़ घर का राशन ख़त्म हो गया है, आटा पिसवाना है. ठीक है, आपके शर्ट का बटन टूट गया है वो ठीक करना, नल टैप काम नहीं कर रहा है प्लम्बर को बुलाना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही घर में तो वहाँ पर फ़ोन करना. ये सब भी काम कौन करती है? एक हाउसवाइफ, एक मम्मी करती है. यानी ये क्या हो गया? एक डबल काम हो गया मम्मी का. ठीक है, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? मम्मी के. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अवर फादर. जब हम हमारे फादर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो फादर है, जो मेल है, उनको एक ही काम है. सपोज़ अगर आपके पापा स्कूल में टीचर है, वो क्या करेंगे? उनका दिन कब शुरू होगा? सपोज़ उनकी 8 बजे की स्कूल है तो वो आराम से 7 बजे उठेंगे, 7 AM. फिर बेथिंग, उनके जो पर्सनल काम है वो करेंगे. फिर उसके बाद जो रेडीमेड टिफ़िन बना के रखा है मम्मी ने वो टिफ़िन उठाएंगे, स्कूल जाएंगे. 2 बजे जब वो घर आएंगे 2 PM. ठीक है, उसके बाद उनको कुछ काम है क्या? नहीं. सपोज़ अगर वो ट्यूशन लेते हैं तो वो ट्यूशन लेंगे, बट आफ्टर दैट वो फ्री हो जाते हैं. ना ही उनको बर्तन धोने की झंझट है, ना ही कपड़े धोने की झंझट है, ना ही घर में कुछ आटा वगैरह ख़त्म हो गया. ठीक है, वो पिसवाने की झंझट है. आपकी स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी मम्मी कंप्लीट कर लेते हैं और रात के 10 बजे वो सोने के लिए रेडी हो जाते हैं, यानी उनके काम ख़त्म हो गए. आपके शर्ट का बटन टूटा है, आपका यूनिफॉर्म धोया है, नहीं धोया है, इनसे उनको कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है. तो इससे क्या है? उनका सिंगल जॉब है. लेकिन जो मम्मीज़ है उनका डबल जॉब हो जाता है. मेन ऑन द अदर हैंड engage less in household work, thereby giving them more time and energy to excel at their job. So in this way the men got more time and energy to excel over their in job. See on next point, valuing household work. Work of women is not valued much as compared to that of men, because generally most of the India, already we saw that most of the India consider men to be the bread earners of the family, and just because women are not paid any salary for doing household work, it is believed that their work is valueless. Okay, see next, the value and place of women's work. In traditional society, little or no value is placed on a women's work. Traditional society means पुराने ज़माने में. In our traditional society, little value or no value in place on women's work. Since household chores like fetching water, gathering firewood, or caring for the young or infirm do not bring any money, women's work is considered of no importance and is treated as if it does not exist. यानी उसका जो काम है बिल्कुल भी
not an important work in the eyes of our family or our grandparents. इतना काम कर लेती मम्मी, फिर भी कभी कभी हमारी दादी बोलती है कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ बैठी रहती है. दिस इज़ कॉल्ड द इनविजिबलाइजेशन ऑफ वीमेंस वर्क. इनविजिबलाइजेशन यानी क्या कि जो देखा नहीं जाता ऐसा काम. ये तो प्रोफेशन की बात हो गई, टीचर वगैरह. अगर आप किसी फार्मर वर्कर्स की भी बात करते लेबर जो है उनकी भी बात ऐसी ही है. ठीक है, सपोज आपकी मम्मी खेती का काम करती है आपके पापा के साथ, तो फिर भी उनका डे कब से शुरू होता है? 5 बजे से मॉर्निंग में. फिर फेचिंग ऑफ वाटर, ये जो सारे काम है, पानी वगैरह भरना, गैदरिंग फायरवुड और केयरिंग यंग और इन्फर्म, जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे उनकी देखभाल करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब करके आपके पापा के साथ 9 बजे खेतों में जाना. वहाँ से जब वो 5 बजे आता है तो पापा की ड्यूटी ख़त्म. फिर मम्मी को फिर से वही काम, खाना वगैरह बनाना, आपके जो टिफ़िन है वो धोना, सब आपके यूनिफॉर्म वॉश करना. इन दिस वे. सो ये सब क्या है कि ये दिखाई नहीं देता है किसी को. इनविजिबलाइजेशन है वो, किसी को ये काम, उनके इतने काम देख नहीं सकता है कोई. इवन वेन दे वर्क ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड्स हेल्पिंग देयर मेन फोक विथ प्लगिंग, प्लांटिंग, होइंग, थ्रेशिंग एक्सेट्रा, देयर वर्क इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड. सो ये जो काम है ये पूरे कंसिडर करने चाहिए हमें, बट वी आर नॉट सी दैट वर्क और वी आर नॉट नोटिस ऑल दिस वर्क ऑफ अवर द वीमेन्स. Women are rarely permitted to take part in major decisions taken in family. देखो अभी ये तो हो गई काम की बात, लेकिन कभी कभी जो मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, मेजर डिसीजंस मीन्स फॉर एग्जांपल सपोज अगर आपके सिस्टर की शादी है, मैरिज ऑफ योर सिस्टर, सो सबसे पहले आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक है, वो देखेंगे सब. फिर आपके फादर. आपकी मम्मी को बीच में बोलने का राइट है क्या? नो, कुछ भी नहीं. तो ये जो मेजर डिसीजन है उसमें भी उसको इंटरफियर नहीं करने देते या फिर उसको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता. इवन इन हाउसेस वेयर वीमेन हैपन टू वर्क, इट इज़ ऑफन द मैन हु डिसाइड्स वेयर शी वुड वर्क. मेनी टाइम्स द हस्बैंड डिसाइडेड दैट वेयर इज वाइफ हैव टू बी वर्क. यानी कहाँ काम करना है वो हस्बैंड डिसाइड करते हैं, मेल डिसाइड करते हैं. इन मोस्ट केसेस द वीमेन इज एक्सेप्टेड टू हैंड ओवर हर सैलरी टू हर हस्बैंड. मेन ऑल्सो डिसाइड हाउ टू द मनी शुड बी स्पेंड. बहुत बार ऐसा होता है कि जो हाउसवाइफ होती है उनको पूरी सैलरी अपने हस्बैंड के हाथ में जाके रखनी पड़ती है और उनके हस्बैंड डिसाइड करते हैं कि ये सैलरी कहाँ पर स्पेंड करे, कैसी खर्च करे, यानी उनको खर्च करने का भी राइट नहीं है. तो ये जो कंडीशन है दैट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ वुमेन्स इन आवर इंडियन सोसाइटी. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी. Okay students, so see that in our next video we will see that. Thank you, have a nice day.